Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.7 मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। The market reforms of Alauddin Khilji were oriented towards administrative and military necessities. अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार प्रशासनिक और सैन्य आवश्यकताओं के अनुकूल थे। Medieval rulers believed that necessities of life, especially food grains, should be available to the city folk at reasonable prices. अब देखिए बोल रहा है मध्यकालीन शासकों का मानना था कि जीवन की आवश्यकताओं, विशेष रूप से खाने का जो सामान होता है, सभी देशवासियों को उचित कीमतों पर मिलना चाहिए। But few rulers had been able to control the price for any length of time. परंतु कुछ शासक कुछ समय तक ही कीमतों पर नियंत्रण रख सकते थे। Alauddin Khilji was more or less the first ruler who looked at the problem of price control in a systematic manner and was able to maintain stable prices for a considerable period. अलाउद्दीन खिलजी कमोवेश ऐसे पहले शासक थे जिसने कीमत नियंत्रण की समस्या पर सुव्यवस्थित ढंग से ध्यान दिया तथा लंबी अवधि तक कीमतों को स्थिर रखने में वो कामयाब रहे। It has been pointed out that Alauddin Khilji instituted the market control because after the Mongol siege of Delhi, he wanted to recruit a large army. यह बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की परिपाटी चलाई, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पर मंगोलों की जीत के बाद वह विशाल सेना भर्ती करना चाहता था। All his treasures would have soon exhausted if he was to spend huge resources on army. यदि सेना पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती तो उसका सारा खजाना जल्द ही समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता। With low prices, the Sultan could recruit a large army with low expenses. अब देखिए, सुल्तान कम खर्च पर विशाल सेना की भर्ती कर सका। आगे देखिए, Whatever may be the reason for the market reforms, elaborate administrative arrangements were made to ensure that the market control was followed strictly. बाजार सुधारों के चलते कम कीमतों के जो भी कारण रहे हों, विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थीं कि बाजार नियंत्रण का अनुपालन सख्ती से किया जा सके। आगे देखिए, Alauddin fixed the prices of all commodities from grain to clothes, slaves, cattle, etc. अलाउद्दीन ने अनाजों से लेकर कपड़ा, दासों, मवेशियों आदि तक सभी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी थीं। He also set up 3 markets at Delhi, the first for food grains, the second for cloth of all kinds and for expensive items such as sugar, ghee, oil, dry fruits, etc. and the third for the horses, slave and cattle. उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। पहला बाजार खाने पीने के सामान के लिए था, दूसरा बाजार सभी प्रकार के कपड़ों तथा महंगी वस्तुओं जैसे चीनी, घी, तेल, मेवे आदि के लिए था, तथा तीसरा बाजार घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए था। For controlling the food prices, Alauddin tried to control not only the supply of food grain from the villages and its transportation to the city by the grain merchant, but also its proper distribution to the citizen. खाने की वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन ने
न सिर्फ गांवों से अनाज की आपूर्ति करने और अनाज व्यापारियों द्वारा शहरों तक इसको ले जाने, बल्कि नागरिकों को इसके उचित वितरण डिस्ट्रीब्यूशन का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए अनेक उपाय किए थे. A number of measures were taken to see that the price laid down by the Sultan were strictly observed. बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए थे कि सुल्तान द्वारा निर्धारित किया गया कीमत सख्ती से पालन किया जा सके. आगे देखिए. An officer, Shehna, was in charge of the market to see that no one violates the royal orders. एक अधिकारी शहना बाजार का प्रभारी था, जिसका कार्य यह देखना था कि कोई शाही फरमानों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा था. Barids, intelligence officers, and Munhian, secret spies, were also appointed. बरीदों, गुप्तचर अधिकारियों और मुन्हियान जासूसों की नियुक्ति भी की जाती थी. Alauddin also tried to ensure that there were sufficient stocks of food grains with the government so that the traders did not hike up prices by creating an artificial scarcity or indulge in profiteering. अलाउद्दीन ने यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश की कि सरकार के पास खाने पीने के सामान का उचित भंडार रहे, ताकि व्यापारी बनावटी कमी बताकर कीमतों में बढ़ोतरी वृद्धि न कर दें अथवा लाभ कमा लें. Granaries were set up in Delhi and Chhain, राजस्थान. अब देखिए, दिल्ली और छैन राजस्थान में अन्न भंडारों की स्थापना की गई. The Banjaras and Karwanian who transported the food grain from the country side to the city were asked to form themselves in a body. गांव से शहर में खाने पीने के सामान लाने वाले बंजारों अथवा कारवानियों से अपना एक निकाय बनाने के लिए कहा गया था. They were to settle on the banks of यमुना with their families. उन्हें अपने परिवार के साथ यमुना नदी के तटों पर बसना था. An official, Sehna, was appointed to oversee them. उनकी निगरानी करने के लिए एक अधिकारी शहना की नियुक्ति की गई थी. To ensure the regular supply of food grains to the Banjaras, a number of regulations were made. All the food grains were to be brought to the market, mandis, and sold only at official prices. अब देखिए, बंजारों को नियमित रूप से खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे. सभी खाद्यान्नों को बाजार मंडियों में लाया जाता था और उन्हें सरकारी कीमतों पर बेचा जाता था. The second market for cloth, dry fruits, ghee, etc. was called Sarai-e-Adal. कपड़े, मेवे, घी आदि वाले दूसरे बाजार को सराय-ए-अदल कहते थे. All clothes brought from different parts of the country and also from outside were to be stored and sold only in this market at government rates. देश के कोने कोने से विदेश से लाए गए सभी कपड़े यहाँ लाए जाते थे. उन्हें एकत्रित किया जाता था और इस बाजार में सरकारी दरों पर ही बेचा जाता था. To ensure an adequate supply of the commodities, all the merchants were registered and a deed taken from them that they would bring the specified quantities of commodities to the Sarai-e-Adal every year. सभी वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, पंजीकरण किया जाता था और उनसे इस बारे में दस्तावेज लिया जाता था कि
हर साल वे वस्तुओं की निर्धारित मात्रा प्रत्येक वर्ष सराय ए अदल के रूप में लाया करेंगे. The merchants who brought commodities from long distance, including foreign countries, were given advance money on the condition that they would not sell to any intermediaries. विदेशों सहित दूर दूर से जो लोग अपनी वस्तुएं लाते थे उन्हें इस शर्त पर एडवांस पैसा अग्रिम राशि दी गई कि वे मध्यस्थों को अपना माल नहीं बेचेंगे. आगे देखिए, आगे बोल रहा है, इन केस ऑफ कॉस्टली कमोडिटीज an officer was to issue permits to amirs, malik, etc. for the purchase of these expensive commodities in accordance with their income. This was done to prevent any black marketing of these expensive products. महंगी वस्तुओं के लिए अधिकारी, अमीरों, मालिकों आदि को इनकी आय के अनुसार इन महंगी वस्तुओं को खरीदने के लिए परमिट अनुमति जारी करता था. यह इसलिए किया जाता था ताकि इन महंगे उत्पादों की ब्लैक मार्केटिंग, काले बाजारी को रोका जा सके. The third market dealt with horses, cattle and slaves. तीसरे बाजार में घोड़ों, मवेशियों और दासों की खरीद फरोख्त होती थी. The supply of horses of good quality at fair price was important for the army. उचित कीमतों पर अच्छी किस्म के घोड़ों की आपूर्ति सेना के लिए महत्वपूर्ण थी. Alauddin did away with the middleman or dalal who had become very powerful. अलाउद्दीन ने शक्तिशाली मध्यस्थों अथवा दलालों को हटा दिया था. It was decided that the government fixed the quality and prices of the horse. यह निर्णय लिया गया था कि सरकार घोड़ों की किस्मों और कीमतों को निर्धारित करेगी. Similarly, the prices of slave boys and girls and of cattle were also fixed. इसी प्रकार दास लड़कों और लड़कियों तथा मवेशियों की कीमतें भी निर्धारित की गई थी. But these reforms didn't last long, and after the death of Alauddin, these reforms got lost. लेकिन ये सुधार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाए और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद समाप्त हो गए.